Today I am starting new chapter time and work, and there is no written work. So come to the direct to the exercise of time and work. This is our exercise 2 of time work. Now I am starting exercise 2. Good morning student. Today I am starting new chapter time and work. This is our first question. Rajan can do a job in 60 days. How much of the job will he able to finish in a day? This is our first part. This is our second part. How much of the job will he be able to do in 36 days? And this is the third part. In how many days will he do 2 upon 5 of the job? These are three parts. And this is our question. Rajan can do a job in 60 days. राजन एक काम 60 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 36 डेज में कितना करेगा, एंड थर्ड पार्ट इतना जॉब वो कितने दिन में करेगा. आई एम सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट. राजन कैन डू इन 60 डेज इज इक्वल टू 1 जॉब. सो राजन कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 जॉब. एक दिन में वो इतना काम करेगा. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. एंड सेकंड पार्ट, राजन कैन डू इन 36 डेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 into 36. After reducing, our answer comes 3 upon 5 job. It means in 36 days he complete 3 upon 5 job. This is our second part. Now come to the third part. Rajan can do one job. एक काम वो करता है 60 days. So Rajan can do 2 upon 5 job is equal to 2 upon 5 into 60 is equal to 24 days. This is our third part. कि 2 upon 5 काम वो कितने दिन में करता है? 2 upon 24 days में complete करता है. This is our question and these are three parts. First part this, and second part this, and this is our third. Now come to the question number 2. A can do a job in 15 days and B in 10 days. A किसी काम को 15 दिन में करता है, B उसी काम को 10 दिन में करता है. How many days will they take to finish the job if they work together? अगर वो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेते हैं. Now solution start. A can do in 15 days equal to 1 job. A can do in 1 day. एक दिन में कितना काम करेगा? 1 upon 15 job. Similarly, B can do 10 days में equal to 1 job. तो B can do in 1 day equal to 1 upon 10 job. तो B एक दिन में इतना काम करेगा, A एक दिन में इतना काम करेगा. अगर दोनों दिन मिल जाए, both are together, A plus B can do in 1 day is equal to 1 upon 15 plus 1 upon 10. After solving, our come 5 upon 30 and 5 1 is 5, 5 6 is 30. It means both A plus B can do in 1 day is equal to 1 upon 6 job. Now A plus B can do 1 upon 6 job in 1 day. A plus B 1 upon 6 job 1 day में करते हैं. So A plus B can do 1 job is equal to 1 upon 1 upon 6. 1 upon 1 assist go ऊपर equal to 60. It means A plus B can do 1 job. A plus B मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं? 60. Now come to the question number 3. A can do a job in 4 whole 1 upon 2 days and B can in 9 days. A किसी काम को इतने डेज में करता है और B 9 डेज में. How long will they take to complete the job together? कितना टाइम वो लेंगे कि कंप्लीट काम को पूरा करने के लिए. सेकंड पार्ट, इफ दे आर पेड ₹900, अगर उन दोनों को मिलाकर ₹900 दिया गया फॉर द जॉब काम के लिए, व्हाट विल बी ईच पर्सन शेयर? तो हर आदमी का ए का और बी का क्या शेयर होगा. नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट. ए कैन डू 9 upon 2. ए कैन डू इन 9 upon 2 days equal to 1 day. 4 whole 1 upon 2 simplifying after 9 upon 2. तो A can do in 9 upon 2 days equal to 1 job. इतने दिन में एक काम करता है. तो 1 डे में कितना करेगा? 1 upon 9 upon 2 is equal to 2 upon 9 job. और A एक दिन में इतना काम करेगा. Similarly, B can do in 9 days is equal to 1 job. तो B can do in 1 day is equal to 1 upon 9 job. तो B एक दिन में इतना काम करेगा. A एक दिन में इतना काम करेगा. B एक दिन में इतना काम करेगा. अगर दोनों मिलकर काम करें, A plus B can do in 1 day is equal to 2 upon 9 plus 1 upon 9 is equal to 3 upon 9 and 3 will actually 3 3 is 9 is equal to 1 upon 3 job. A plus B एक दिन में 1 upon 3 job काम करते हैं.
Now I am reversing this line. A plus B can do 1/3 job. A plus B इतना जॉब 1 डे में करते हैं, तो 1 जॉब कितना करेंगे? 1/3. तो this upon this 1/1/3 means 3 days. This is the first part, first solution. Because question, how long will they take to complete the job together? अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? So A plus B can do 1 job equal to 3. Now second part, if they are paid ₹900, अगर उन दोनों को 900 रुपीज दिया गया उस काम के लिए, तो A का क्या शेयर है और B का क्या शेयर है? Now solution of second, ratio of working of both, दोनों के काम करने का जो रेशियो है वो 2/9, रेशियो 1/9. 9 cut by this, तो रेशियो we can say this 2:1. 2/9 रेशियो 1/9 को 2:1 का कह सकते हैं, बिकॉज 9 का. तो द रेशियो ऑफ वर्किंग ऑफ बोथ इज 2:1. सम ऑफ रेशियो is equal to 2 plus 1 is equal to 3. Now total money is equal to ₹900. So A share, A का क्या हिस्सा होगा? A को कितना पैसा मिलेगा? A का रेशियो क्या है? 2 upon sum of both 3. 2/3 multiplied by 900. After reducing, our answer comes 600. It means A share is equal to 600. Similarly, B share is equal to, B ratio is 1/3 into 900 is equal to 300 rupees. Now come to the question number 4. A and B can do a certain job in 5 hours. A और B किसी काम को मिलकर 5 घंटे में करते हैं. एंड A alone can do, A अगर अकेला करता है तो 8 आवर में करता है. How long will B take to the job alone? तो B को कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने में अकेले? Solution start. A plus B can do in 5 hours is equal to 1 job. So A plus B can do in 1 hour. अगर 1 घंटे में A plus B कितना काम करेंगे? 1/5 job. A can do again, A can do in 8 hours. A अकेला 8 घंटे में करता है 1 job. A can do in 8 hours is equal to 1 job. A can do in 1 hour is equal to 1/8 job. A अकेला 1 घंटे में इतना काम करता है और A plus B मिलकर 1 घंटे में इतना काम करते हैं. So B can do in 1 hour. B अकेला 1 घंटे में कितना काम करेगा? This minus this 1/5 minus 8 is equal to 3/40 job. It means B can do in 1 hour. B अकेला 1 घंटे में कितना काम करेगा? Again B can do, इसी बात को रिवर्स करके लिख रहे हैं. B can do 3/40 job is equal to 1 hour. B इतना जॉब 1 घंटे में कर सकता है. So B can do 1 job is equal to 1/3/40. 1/3 40 go outside is equal to 13 for 1/3 hour. तो B एक काम, B उस काम को पूरा करेगा 13 for 1/3 hour. Now come to the question number 6. A and B can do a job in 15 days. A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं. They were together for 6 days. उन दोनों ने मिलकर एक साथ 6 दिन काम किया. And then B leave, और तब B ने काम छोड़ दिया. B कहीं चला गया. If A can do the job alone, अब बाकी बचे हुए काम को A अकेला करता है in 15 days. If A can do the job alone, अगर A उस काम को करता तो 50 days में कर लेता अकेले. How long will he take to complete the unfinished job? अब A को कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में? जब शुरू में तो मतलब इसमें लिखा है कि A और B किसी काम को 15 दिन में करते हैं. दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया. आफ्टर 6 days B चला गया, तो जो काम बचा उस बचे हुए काम को A अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? सॉल्यूशन. A plus B can do in 15 days equal to 1 job. A plus B can do in 1 day equal to 1/15 job. A plus B can do in 6 days. तो कि दोनों ने 6 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया? 1/15 into 6 is equal to 2/5 job. इतना काम कंप्लीट हो चुका है जो A और प्लस B मैंने मिलकर 6 दिन में किया.
तो बैलेंस वर्क कितना काम बचा, टोटल वर्क 1 माइनस 2/5 इक्वल टू 3/, इतना काम बचा है जो कि इसको करना है, ए को करना है, तो कि बी चला गया है। पर एक कंडीशन और थी कि अगर ए अकेला उस काम को करता तो 50 डेज में करता है। ए कैन डू इन 50 डेज इक्वल टू 1 जॉब, ए कैन डू इन 1 डे इक्वल टू 1/50 जॉब। job equal to 1 day. So A can do one job equal to 1/1/50 equal to 50 days. It means A can do one job equal to 50 days. But balance work is 3/5. So A can do 3/5 job equal to 3/5 into 50 equal to 30 days. So A can do balance work, balance job in 30 days. Now come to the question number 9. A and B can do a job together in 25 days. A और B के मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं. After 15 days of working together, 15 दिन दोनों ने साथ काम किया. B leaves और उसके बाद B चला गया. If A complete the remaining part of the job, A ने बचा हुआ काम 20 days में किया. How long would each take to complete the job working separately? अगर दोनों अलग-अलग काम करते हैं तो उस काम को A कितने दिन में करेगा और B कितने दिन में करेगा। सॉल्यूशन A plus B can do in 25 days equal to 1 job. A और B मिलकर 25 डेज में एक जॉब करते हैं, तो A और B मिलकर 1 डे में 1/25 जॉब। A और B मिलकर 15 डेज में 15 into 1/25 equal to 3/5 जॉब। A और B ने 15 डेज तक काम किया और इतना वर्क कंप्लीट हो गया, because A plus B both are together. Now balance job equal to 1 minus 3/5 equal to 2/5 job. इतना काम बचा जो कि A B ने उसको 20 डेज में किया, तो B complete 2/5 job equal to 20 days. B बैलेंस वर्क को 20 डेज में करता है। अगर उसको पूरा काम करना होता 1 जॉब तो 20/20/5 equal to 50 days. B कंप्लीट 1 जॉब, अगर B अकेला उस काम को करता तो 50 डेज लेता, पर A और B दोनों मिलकर उसी काम को 25 डेज में करते हैं। B अकेला उसी काम को 50 डेज में करता है। इट मींस A कैन डू 1 जॉब आल्सो 50 डेज। तो अगर A अकेला उस काम को करेगा तो वो भी 50 डेज लेगा, क्योंकि B अकेला उस काम को 50 डेज में कर रहा है, बट A और B उसी काम को 25 डेज में कर रहे हैं, तो सो A कैन डू 1 जॉब इक्वल टू 50 डेज। 8 men और 12 women can do a job in 25 days. 8 आदमी या 12 औरतें किसी काम को 25 दिन में करते हैं। किसी काम को चाहे 8 आदमी करें वो भी 25 दिन में करते हैं, चाहे 12 वुमेन करें तो भी 25 दिन में करते हैं। In what time can 6 men and 11 women do it? कितने टाइम में 6 आदमी और 11 औरतें उस काम को पूरा करेंगी? तो इट मींस 8 men is equal to 12 women. 8 आदमियों का जो काम है वो 12 औरतों के काम के बराबर है। 1 man is equal to 12/8 is equal to 3/2 women. 6 men is equal to 3/2 into 6 is equal to 9 women. इससे मतलब क्या है कि 6 आदमियों का काम 9 औरतों के काम के बराबर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 अगेन। 8 आदमी या 12 औरतें किसी काम को 25 दिन में करती हैं, तो नाउ वी टेक वुमेन एंड डेज। वुमेन एंड डेज 12 औरतें किसी काम को 25 दिन में करती हैं, तो इन व्हाट टाइम कैन डू 6 men and 11 women. तो 11 औरतें ये हैं और 6 men चेंज इनटू वुमेन 9 women, तो 9 + 11 is equal to 20 women. मींस 20 women उस काम को कितने दिन में करेंगी? 12 औरतें उस काम को 25 दिन में करती हैं, तो 20 औरतें जो है वो जल्दी करेंगी, तो इधर इनवर्स वेरिएशन। आफ्टर implying arrow sign, now we solve it. x/25 is equal to 12/20. 4 3 are 12, 4 5 are 20. 25 go that side. X is equal to 3/5 into 25. 5 1 is 5, 5 5 are 25, 5 3 is 50. It means 20 women can do that work in 15 days. Now come to the question number 11. If A, B and C can do a job in 12 hours. A, B और C तीनों मिलकर किसी काम को 12 आवर, 20 आवर एंड 30 आवर। A किसी काम को 12 आवर में करता है, B
उसी काम को 20 आवर में और सी 30 आवर में। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में उस काम को पूरा कर लेंगे। सोल्यूशन, ए कैन डू इन 12 आवर इक्वल टू 1 जॉब, तो 1 आवर में कितना जॉब करेगा 1/12। सिमिलरली बी कैन डू इन 20 आवर इक्वल टू 1 जॉब, तो बी कैन डू इन 1 आवर इक्वल टू 1/20 जॉब। सी कैन डू इन 30 आवर इक्वल टू 1 जॉब, तो सी कैन डू इन 1 आवर इक्वल टू 1/30 जॉब। ए 1 घंटे में इतना काम करता है, बी 1 घंटे में इतना काम करता है, सी 1 घंटे में इतना काम करता है, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इन 1 आवर, तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 1/6 जॉब। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इन 1 आवर, तीनों मिलकर 1 घंटे में इतना काम करेंगे। C can do 1/6 job equal to 1 hour, तीनों मिलकर 1/6 job equal to 1 hour, तो A plus B can do 1 job equal to 1/1/6 equal to 6 hours, तो A plus B plus C तीनों मिलकर एक काम को 6 hours में पूरा करेंगे। Now come to the question number 12. A can do a job in 3 hours, B in 4 hours and C in 6 hours. If they all work together and receive rupees 360, how much money should each get? ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, बी 4 घंटे में, सी 6 घंटे में करता है, तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो दे रिसीव 360 रुपीज, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। सोल्यूशन, ए कैन डू इन 3 आवर इक्वल टू 1 जॉब, ए कैन डू 1 आवर इक्वल टू 1/3 जॉब, बी कैन डू इन 4 आवर इक्वल टू 1 जॉब, बी कैन डू इन 1 आवर इक्वल टू 1/4 जॉब। सिमिलरली सी कैन डू इन 6 आवर इक्वल टू 1 जॉब, C can do in 1 hour equal to 1/6 job. So this is the A 1 घंटे में इतना काम, B 1 घंटे में इतना काम, C 1 घंटे में इतना काम, तो तीनों का रेशियो ऑफ वर्किंग ऑफ A, B एंड C ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का तीनों का रेशियो क्या है, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। Now we take LCM, LCM is 12, 3 4 is 12, 4 4 3 is 12, 3 1 is 3 3, 6 2 is 12, 2 1 is 2 2, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 2 अपॉन 12 we write 4 रेशियो 3 रेशियो 2, मतलब दिस रेशियो चेंज इन दिस रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 2। नाउ सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 9, तो ए शेयर, ए को कितना मिलेगा, ए का रेशियो 4 अपॉन सम 9 into 360 is equal to 160 rupees, total rupees 360। in this question there are given total rupees 360 which have to distribute A, B and C, so A share is equal to 4/9 into 360 is equal to 160 rupees। similarly B share is equal to 3/9 into 360 is equal to 120 rupees। similarly C share is equal to 2/9 into 360 is equal to 80 rupees। B can do a job in 6 days, A और B किसी काम को 6 डेज में करते हैं, B और C 9 डेज में, और A और C मिलकर 12 डेज में करते हैं। How much time will they take to complete the job if they all work together? अगर वो सब मिलकर तीनों काम करते हैं तो उस काम को कितनी देर में करेंगे? This is our first question. And second, how long will each of them take to do the job? और अलग अलग उस काम को करेंगे तो उस काम को करने में ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना और सी को कितना। सॉल्यूशन स्टार्ट, ए प्लस बी कैन डू इन 6 डेज इक्वल टू 1 जॉब, ए और बी मिलकर 6 दिन में एक काम करते हैं तो 1 डे में 1/6 जॉब। सिमिलरली बी प्लस सी कैन डू इन 9 डेज इक्वल टू 1 जॉब, तो बी प्लस सी कैन डू इन 1 डे इक्वल टू 1/9 जॉब। सिमिलरली ए प्लस सी कैन डू इन 12 days equal to 1 job, so A plus C can do in 1 day equal to 1/12 job। This is the work of 1 day of A and B 1/6, this is the B and C 1/9 and this is the A and C 1/12। if we add this plus this plus this, so it means 2 times A, 2 times B and 2 times C, so 2A plus B plus C can do in 1 day equal to 1/6 plus 1/9 plus 1/12 equal to 13/36 job। 2A 2B 2C, 2A 2B 2C तीनों
मतलब दो ए है, दो बी है, दो सी है, ये सब मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। तो 2 को मैंने इधर सेंड किया, तो a प्लस बी प्लस सी कैन डू इन वन डे इक्वल टू, जब 2 इधर आएगा तो अपॉन नीचे आएगा 13 अपॉन 36 इंटू 2 इक्वल टू 13 अपॉन 72। इसका मतलब ए बी और सी, एक ए एक बी और एक सी अगर तीनों काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 अपॉन 72 जॉब। Now we say this line reverse. A again, A plus B plus C can do 13 upon 72 job equal to 1 day. इतना काम A, B, C मिलकर एक दिन में करते हैं। तो A, B, C 1 जॉब, पूरा ये काम कितने करेंगे? 1 upon 13 upon 72 is equal to 72 upon 13. After dividing, our answer comes 5 whole 7 upon 13 10. ए अकेला उस काम को कितना करेगा, बी अकेला उस काम को कितना करेगा, और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। नाउ यू सी दैट ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इन वन डे, तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं 13 अपॉन 72। बट हियर वी सी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 अपॉन 6 जॉब। ए और बी एक दिन में इतना काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में उतना काम करते हैं 13 अपॉन 72। तो इसका मतलब अगर इफ we subtract this from this, then we got C कि एक घंटे में कितना काम करेगा। इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, तो C can do in one day, C अकेला उस काम को एक दिन में कितना करेगा? 13 upon 72 minus 1 upon 6, 13 upon 72 minus 1 upon 6 is equal to 1 upon 72 जॉब। C अकेला एक दिन में उसका 1 upon 72 जॉब करेगा। इसी लाइन को रिवर्स करके अगेन C कैन डू इतना जॉब इन वन डे, तो पूरा जॉब 1 upon 72 इज इक्वल टू 72 डेज। इसका मतलब C एक पूरा काम 72 डेज में करेगा। नाउ कम टू द A कैन डू इन वन डे इक्वल टू A एक दिन में कितना काम करेगा? बिकॉज A B प्लस C दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 upon 9। तो we subtract this from this to find A. A can do in one day equal to 13 upon 72 minus 1 upon 9 equal to 5 upon 72 job. It means A can do this job 5 upon 72 job is equal to one day. A इतना काम एक दिन में करेगा, तो A can do one job is equal to 1 upon 5 upon 72 is equal to 14 whole 2 upon 5 days. इसका मतलब A एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? Now come to the B. B can do in one day. B एक दिन में कितना काम करेगा? जब तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं और A और C मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, तो we subtract again this from this. B can do in one day is equal to 13 upon 72 minus 1 upon 5 is equal to 7 upon 72. B can do, B एक दिन में कितना काम करेगा? 7 upon 72। अगेन B कैन डू इतना जॉब वन डे में, इतना काम एक दिन में, तो वन जॉब इज इक्वल टू 1 upon 7 upon 72 इज इक्वल टू 10 whole 2 upon 7 to 10 upon 2 upon 7 8।